to art integration from only one group, Khushi wala group. What about others? Are you doing something on art integration? So when shall I get the PDF of your works that you are submitting? Sir, after this class, I will send it. Okay, after this class you will send. What is your topic? Sir, we have 2-3 topics, so we will divide in these. Okay, you will divide your project into different topics. Yes, sir. Or you will choose one topic from out of these topics. Sir, if there will be good material, so we will have one topic, or if there is less, so we will divide in these. Okay. This is about Arman's group. What about others? मोहित, अच्छा मोहित अरमान सब एक ही ग्रुप में है क्या? नहीं, मोहित इज इन डिफरेंट ग्रुप. No, sir, different. मोहित तुम लोग का क्या है? सर हम भेज देंगे आज. हाँ, व्हाट इज योर टॉपिक? सर अभी आज भेज देंगे. हाँ सर. हाँ, आप भेज दो, एक बार मैं उसकी स्टडी कर लूँ. ठीक है, स्टडी करने के बाद मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा उसमें. उस क्रॉस क्वेश्चनिंग से कैसे हम इसको अपने केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे, दैट विल कम टू नो. देन ऑन 31st वी टीचर्स विल हैव मीटिंग. ठीक है, we'll try to learn what should be incorporated in this project, how this should be carried out, and then we'll finalize. After that, you need not to submit me hard copy of that. ठीक है, you will prepare a final soft copy, means you will write, make the PDF, ठीक है, and submit me soft copy of that. CBSE asks soft copy. CBSE this time is denying to collect hard copies and making a trucks of files and then reselling it after the year end. ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट चार्ट बनाएंगे उसकी सॉफ्ट कॉपी टीचर से भेजिए. एक कॉपी आपकी फाइनल बनेगी, दैट यू शुड कीप विथ यू. एक हार्ड कॉपी बनेगी वो आप अपने पास रखेंगे, और वन कॉपी यू कैन सबमिट टू मी फाइनल जो कॉपी होगी. लेकिन आप मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, एक ग्रुप की एक कॉपी. ठीक है, so total I will have 4 copies of hard paper. Barbie, getting myself? All right. और बाकी किसी को कुछ कहना है तो ठीक है, अदरवाइज विल स्टार्ट आवर क्लास. सुहानी, तुम्हारा ग्रुप? मोहित के ग्रुप में. मोहित के ग्रुप में हो, कुछ कर रहे हो? यस सर. अच्छा, जल्दी जल्दी कर लो. कल फिर से प्रैक्टिकल करना है कि थ्योरी की क्लास रखना है? सर प्रैक्टिकल. सर प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल. ओके, सो पहले दिन हमने टाइट्रेशन किया था, फिर हमने सॉल्ट एनालिसिस का एक एक्सपेरिमेंट किया. अगर आप चाहें तो टाइट्रेशन का दूसरा एक्सपेरिमेंट कल रिपीट कर सकते हैं, और उसके बाद टाइट्रेशन के सेकंड ग्रुप में जाएंगे. 0 ग्रुप से फर्स्ट ग्रुप में आएंगे सॉल्ट एनालिसिस का. कल कौन सा करना है, टाइट्रेशन वापस करना है कि सॉल्ट एनालिसिस? सर सॉल्ट. बिकॉज अगर आपको टाइट्रेशन करना है तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन पहले से करके रखनी पड़ती है. लैब में एपरेटस वगैरह सब सेट करके रखना पड़ता है. चॉइस इज योर्स, यू टेल मी राइट नाउ. क्योंकि मुझे सैनी भैया को बोल के फिर बोलना पड़ेगा कि लैब रेडी करो. टाइट्रेशन करना है सेकंड एक्सपेरिमेंट HCl और Na2CO3 वाला, कि सॉल्ट एनालिसिस को कैरी फॉरवर्ड करना है? जल्दी बोलो, कितना सोचना क्या है. Ronit has said salt analysis. Anybody else who has opinion different from it? No one. Fine. So we'll carry forward salt analysis. ठीक है, अभी हमने 0 ग्रुप का किया था सॉल्ट का, अमोनियम क्लोराइड का. अभी फर्स्ट ग्रुप के सेकंड ग्रुप के सॉल्ट्स का करेंगे. मैंने आपको बताया था ना ग्रुपिंग ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है, तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा उसमें. So in the previous class we had studied physical properties of aromatic hydrocarbons. Today let's study chemical properties of aromatic hydrocarbons. But give me 1 minute to adjust the board.
All right, children. Fine. Now, okay, 1 minute. Good. So, chemical property of ions. Is the board visible to you, children? Yes. So, among chemical properties of aromatic hydrocarbons or arenes, the important one is substitution reaction or replacement reaction. So, first one is substitution or replacement reaction. Substitution or replacement reactions. What are substitution reactions or replacement reaction? Can anyone define? बोलो. Substitution reactions क्या होते हैं बच्चों? This is just similar to displacement reactions. So substitution reactions are those reactions in which a nucleophile or electrophile or free radical replaces another nucleophile or electrophile or free radical present in the organic compound. किसी भी organic compound में जो nucleophile present है या electrophile present है या free radical जो generate होगा उसको जब कोई दूसरा replace करेगा then it is called as substitution reaction. Fine. So first example of substitution reaction in aromatic hydrocarbons is halogenation. Substitution is first halogenation. Halogenation means reaction of aromatic hydrocarbons with halogens. ठीक है, इसमें लिख लीजिए halogenation of aromatic hydrocarbons. Halogenation of aromatic hydrocarbons halogenation of aromatic hydrocarbons takes place when aromatic hydrocarbons are reacted with halogens in presence of anhydrous AlCl3 or FeCl3. ठीक है, halogenation of aromatic hydrocarbons takes place when aromatic hydrocarbons are reacted with halogens in presence of anhydrous AlCl3 or FeCl3 acting as halogen carrier. So सर वे के बाद रिपीट कर दो. हाँ, फिर से बोलना मोहित. सर वेन के बाद रिपीट कर दो. When aromatic hydrocarbons are reacted with halogens in presence of anhydrous AlCl3 or FeCl3 acting as
हैलोजन कैरियर। अब देखो, जैसे हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या ले लिया, बेंजीन, ठीक है, ये हमने बेंजीन ले लिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। If it is reacted with Cl2 with chlorine, which is halogen, in presence of AlCl3 or FeCl3, AlCl3 or FeCl3, then it gives chlorobenzene and HCl. Chlorobenzene plus HCl, ये बन गया। So benzene is reacted with halogen in presence of halogen carriers AlCl3 or FeCl3 to give chlorobenzene and HCl. ठीक है, यार अभी कैमरा डिस्टर्ब है, चलो ठीक है। All right, now let's see how this reaction takes place. इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये हेलोजिनेशन कैसे होता है। Okay, so mechanism of halogenation. अब देखो बच्चों, जब आप लिख रहे हो मैकेनिज्म और आप रिएक्शन पढ़ रहे हो कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको पहले से पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इन फ्रंट ऑफ दिस स्टडी मैकेनिज्म यू मस्ट राइट द halogenation of arenes is an example of electrophilic substitution reaction, is an example of electrophilic substitution reaction which proceeds in following steps. ठीक है, so you can write halogenation is an example of electrophilic substitution reaction which proceeds through following steps. First step, step 1, generation of electrophile. Generation of electrophile that is E positive ion. ठीक है, ये कैसे बनेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद AlCl3 और FeCl3 to give AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये रिएक्शन कैसे हुई। AlCl3 इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों है कमी, क्योंकि एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्डेड है 3 क्लोरीन के साथ। ठीक, कोई भी एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास नहीं है। सो एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में उतने नहीं है। सो इट हैज टेंडेंसी टू गेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। सो AlCl3 कैसे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा। AlCl3 के कांटेक्ट में जब Cl2 आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे जाएगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेने लगा AlCl3। सो यहां से जब दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के क्लोरीन में गए
ये वाला क्लोरीन कैसा हो जाएगा Cl नेगेटिव और ये वाला कैसा हो जाएगा Cl पॉजिटिव। Cl negative will give a pair of electron to aluminium and form AlCl4 negative और साथ में क्या बच जाएगा Cl positive, this is electrophile, ये electrophile जनरेट हो गया। Now in second step is electrophilic attack on arene पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कैसे होगा ये देखिए कि ये बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग में हर कार्बन एटम में क्या प्रेजेंट है एक हाइड्रोजन। देयर इज वन CH बॉन्ड प्रेजेंट ऑन एवरी कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, जो कि हम सिर्फ एक को शो कर रहे हैं, सबको शो नहीं कर रहे, सब जगह पे है CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड। ठीक, इससे रिएक्ट करेगा Cl पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल। कैसे रिएक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट बॉन्डेड विद आयन। जैसे Cl पॉजिटिव बेंजीन की ओर अप्रोच करेगा तो वन ऑफ द पाई बॉन्ड व्हिच इज क्लोजेस्ट टू CH बॉन्ड विल गेट ब्रोकन, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने के बाद कहां पे आ जाएंगे इस कार्बन पे आ जाएंगे और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा Cl पॉजिटिव के पास। पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे जाएंगे और कार्बन से कौन ले लेगा Cl पॉजिटिव आयन and will get bonded with this। so इससे एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी जिसमें क्या होगा कि ये हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे Cl रहेगा और ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब पाई बॉन्ड टूट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के नीचे क्लोरीन के पास चले गए, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा बच्चों, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन पे दो इलेक्ट्रॉन आए थे, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए क्लोरीन पे। सो कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। As a result, the electronegativity of this positively charged carbon atom will get increased. So it will attract the bonded pair of electrons from CH bond. ये CH bond से सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको अपनी ओर खींचेगा, जिससे ये CH बॉन्ड कैसा हो जाएगा वीक हो जाएगा। ठीक, सो ये एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बन गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, next step will be deprotonation, that is removal of H plus ion। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है Cl पॉजिटिव है, बॉन्डिंग कर रहा है इसके साथ। अब बॉन्डिंग करने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा इट विल टेक लिटिल टाइम और टाइम लगने की वजह से ये क्या हो जाएगा दिस विल बी स्लो स्टेप। ठीक है, स्लो स्टेप में क्या हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्लो स्टेप में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है एंड ओवरऑल देयर विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस। ओवरऑल पूरे रिएक्शन में क्या हो जाएगा H प्लस का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, Cl इसमें जुड़ जाएगा और H प्लस निकल जाएगा। Therefore the reaction will be electrophilic in nature because electrophile is getting added in slow step and in the final step H plus ion will be replaced, so it will be replaced the reaction। स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है और ओवरऑल क्या हो रहा है रिप्लेसमेंट H प्लस का। इसलिए एग्जांपल किसका हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक रिप्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल हो जाएगा। थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ H प्लस आयन और यू कैन राइट न्यूक्लियोफिलिक अटैक। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का जनरेट हुआ AlCl4 निकलेगी। सो ये जो आपकी इंटरमीडिएट स्पीशीज बनी दिस वन, ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्पीशीज will now react with AlCl4 negative which is nucleophile। ठीक है, जब AlCl4 नेगेटिव के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा देखो
AlCl4 नेगेटिव में एक एक्सेस क्लोराइड आयन है, AlCl3 में Cl नेगेटिव आयन ऐड हुआ तब जाके AlCl4 नेगेटिव। यहां से Cl नेगेटिव क्या करेगा, ये H+ को इलेक्ट्रॉन देके अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहां से पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है, बॉन्ड को वीक कर रहा है, और क्लोराइड आयन इधर से क्या करेगा, H+ को अपनी ओर खींचेगा, जिससे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। एक साइड से कार्बन खींच रहा है, एक साइड से AlCl4 नेगेटिव खींच रहा है, बॉन्ड फर्दर वीक हो जाएगा, टूट जाएगा, और यहां से H+ आयन रिलीज हो जाएगा। कैसे रिलीज होगा H+ आयन, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को, ये पकड़ो, मुझे दूसरी जगह से मिल, तो AlCl4 नेगेटिव से जाके रिएक्ट कर लेगा, Cl नेगेटिव और H+ मिलके क्या बना लेंगे, HCl। So this will be AlCl3 times back plus HCl, और साथ में क्या बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो, और साथ में बन गया क्या, बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा रह जाएगा, दिस विल बी फ्लोरोबेंजीन, AlCl3 और HCl will be साइड प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स। Is it clear? Understood? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत मैग्नीशियम में? नो, ठीक है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल ब्रोमिनेशन ले लो, हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन के बाद ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन भी सेम ऐसे ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा। क्लोरीनेशन का ब्रोमिनेशन सीधे इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, मैग्नीशियम सिर्फ रहेगी, ठीक है, बेंजीन प्लस Br2 in presence of AlBr3 और FeBr3, AlCl3 की जगह पे AlBr3 हो जाएगा, FeCl3 की जगह पे FeBr3 हो जाएगा, यहाँ से Br2 बॉन्ड टूटेगा, क्या बन जाएगा, AlBr4 नेगेटिव और ब्रोमोनियम आयन Br पॉजिटिव आयन, Br पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, ब्रोमो बेंजीन करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी ब्रोमोबेंजीन प्लस H निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा, HBr निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आयोडीनेशन करते हो तो प्रॉब्लम है। आयोडीनेशन में प्रॉब्लम है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी प्रॉब्लम, कोई बता सकता है मुझे? ये अपना बेंजीन है, बेंजीन को आपने आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ Al3 और FeI3, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आयोडोबेंजीन प्लस HI, और ये HI एक सारी समस्याओं की जड़ है। क्यों है समस्याओं की जड़, क्योंकि हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है, आयोडीन आयन इज आयोडीन वेरी बिग इन साइज, सो दिस बॉन्ड लेंथ इज क्वाइट लार्ज। हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत बड़ी है, बॉन्ड बड़ा होने की वजह से क्या है, ये वीक बॉन्ड, इट इजीली गेट्स ब्रोकन। जैसे ये ब्रेक होगा H+ आयन मिलेगा और H+ आयन will react back with iodobenzene and will convert it into iodine back, so it makes the reaction reversible. So HI being a powerful reducing agent reduces iodobenzene back into benzene or reduces iodide ion into iodine। इस आयोडाइड आयन को आयोडीन में रिड्यूस कर देगा वापस, क्यों, क्योंकि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, instead of being forward direction reaction, the reaction will become reversible। So iodination में आपने पहले क्वेश्चन लिखी कि aromatic hydrocarbon plus iodine give rise to iodobenzene plus HI। उसके बाद लिखिए HI being a powerful reducing agent
HI being a powerful reducing agent reduces iodobenzene back into benzene. Reduces iodobenzene back into benzene. ये दोबारा क्या कर देता है, आइडोबेंजीन को बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, अगर इसने वापस बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया तो व्हाट इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, आयोडीन। आइडोबेंजीन से आयोडीन निकल गया, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। सो HI रिड्यूसेस आइडोबेंजीन बैक इनटू बेंजीन। ठीक है, अब इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिस्ट्रॉय द HI फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, जो HI बना रिएक्शन में उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बच्चों, बोलो, हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय HI? कैन एनीवन टेल मी कि हम HI को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं जो HI बना? जल्दी बोलो। HI is a powerful reducing agent. How can we destroy it when it is formed in the reaction? It can be destroyed by reacting HI with strong oxidizing agents. अगर आपको इसको डिस्ट्रॉय करना है, क्या करना पड़ेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको रिएक्शन कराना पड़ेगा। इसलिए लिख लीजिए आप, द HI फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, द HI formed in the reaction needs to be destroyed. HI formed in the reaction needs to be destroyed by adding oxidizing agents into the reaction mixture. By adding ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इनटू द रिएक्शन मिक्सचर। अब कैसे डिस्ट्रॉय होगा, मान लीजिए 5HI ले लिया आपने और HI को आपने रिएक्ट कर दिया किससे, हाइड्रोआयोडिक एसिड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और HI ले लिया, HI को आपने रिएक्ट कर दिया HNO3 से जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सो जब आपने HIO3 के साथ इसको रिएक्शन कराया, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल गिव बैक 3H2O प्लस I2। कितने आए, 5 + 1 6, तो 3 आए। इसने HI को कन्वर्ट कर दिया आयोडीन में। सिमिलरली अगर आप HI को HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, इट विल गिव H2O प्लस NO2 प्लस I2, NO2 प्लस I2। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 2 2 4, 2H2O, नाइट्रोजन 2 है, इसमें 2NO2 प्लस I2। So children, in this way we can destroy or damage the HI formed in the reaction in order to prevent the overall reaction from reversibility. Overall reaction reversible ना हो, इसलिए जो HI बन रहा है रिएक्शन, उस HI को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। और उसको डिस्ट्रॉय हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि HI एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए उसको डैमेज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल हाइड्रोआयोडिक एसिड HiO3 और HNO3 इज नीडेड। इज इट क्लियर नाउ? पूरा हैलोजिनेशन हो गया, समझ में आ गया आपको? क्लोरीनेशन कैसे करेंगे, ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे और आयोडीनेशन कैसे करेंगे। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आयोडीनेशन में।
क्योंकि उसमें बाई प्रोडक्ट में HI बनता है और HI रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है। इसलिए हमको HI को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। HI को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, क्योंकि HI खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। फाइन, हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. So next, nitration. After halogenation, another type of substitution reactions or replacement reactions in aromatic hydrocarbons is nitration. Second type of substitution reaction, nitration. नाइट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का? नाइट्रेशन का मतलब NO2 का एडिशन। आपको बेंजीन में नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव आयन को ऐड करना है और H+ आयन को रिप्लेस करना है। तो NO2 पॉजिटिव आयन जनरेट करने के लिए हमको एक रिएक्शन मिक्सचर यूज करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इन दोनों से रिएक्शन कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है नाइट्रोनियम आयन, दैट इज NO2 पॉजिटिव आयन। That NO2 positive ion act as electrophile, replaces H+ ion and form nitrobenzene. So write down, nitration of benzene is done by heating. Nitration of benzene is done by heating the reaction mixture with nitrating mixture of, एक बार फिर से सुन लीजिए, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज डन बाय हीटिंग बेंजीन, नॉट मिक्सचर, by heating benzene with nitrating mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. By heating the nitrating mixture with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 at about 330 Kelvin. ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन कैसे होगी? बेंजीन भी ले लिया हमने बच्चों, ठीक है, इसको रिएक्ट कराया किससे? HNO3 से in presence of concentrated H2SO4। ये भी है हमारा concentrated HNO3 और 330 केल्विन पे हीट, ठीक है। So product will be nitrobenzene। नाइट्रोबेंजीन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, प्लस H2O, वाटर बन जाएगा। दिस इज रिएक्शन बेंजीन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रोबेंजीन and by product is water, मतलब क्या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलिए इसमें हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई, इसकी मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन नाइट्रेशन। आई विल रिटन दिस रिएक्शन, इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. तीसरे कुछ क्या बोला? All right. So mechanism, लिख दीजिए, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज an example of electrophilic substitution reaction which proceeds through following steps.
Nitration of benzene is an example of electrophilic substitution reaction which proceeds through following steps. Step 1 सेम वही रहेगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव। अब देखो कैसे होगा, HNO3 का स्ट्रक्चर लिखिए, HONO2, मैंने ऐसे लिख दिया HNO3, ठीक है। आपने पढ़ा है डी स्ट्रक्चर, HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल बॉन्ड को OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ये HNO3 का स्ट्रक्चर। इसका मतलब हमने क्या लिखा, एक OH कर दिया और इधर NO2 लिख दिया, ठीक। So HNO3 is reacted with H plus ion released by H2SO4. You can write H plus ion released by, अच्छा ऐसे लिख लो, OSO3H, ये हो गया H2SO4, ठीक है। H2SO4 कैसे लिख सकते हैं, H2SO3 और O मिलके H2SO4, एक पोलर बॉन्ड उसमें से अलग दिखा दिया, ठीक है। यहां से क्या होता है, देखो जब जैसे आपने 330 केल्विन पे नाइट्रेटिक HNO3 के साथ H2SO4 को हीट किया, तो H2SO4 क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और H प्लस आयन विल बी रिलीज्ड। ये H प्लस आयन क्या करेगा, ऑक्सीजन में जो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे कोऑर्डिनेट करेगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप के इधर आ जाएगा, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा कौन, H प्लस आयन। ध्यान से सुनना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन अप बाय H प्लस आयन रिलीज बाय H2SO4, ठीक। ऑक्सीजन से जब लोन पेयर को ले दिया H प्लस में, तो ऑक्सीजन में कैसा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए वो क्या करेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो वीक सिग्मा बॉन्ड है, क्यों वीक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज आल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो वीक सिग्मा बॉन्ड होगा उसको तोड़ देगा और यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन को आ जाएंगे, क्या रिलीज हो जाएगा, NO2 पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में H2। So product will be electrophile NO2 positive, ठीक है, प्लस H2O, H2O बन गया, प्लस और क्या बन गया, HSO4 नेगेटिव आयन। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, और साथ में क्या है, वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट। नाउ सेकंड स्टेप, स्टेप 2 क्या होगा, electrophilic attack on benzene or aromatic hydrocarbon, electrophilic attack on arene, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कैसे होगा, सेम वैसे ये लेके हमने बेंजीन भी, और बेंजीन रिंग को हमने रिएक्ट किया किससे, इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें, नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव आयन, NO2 पॉजिटिव आयन इज नोन एज नाइट्रोनियम, ठीक है। स्टेप कैसी होगी, स्लो, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को एक न्यूट्रल स्पीशीज के साथ रिएक्ट करना है, इसका बॉन्ड तोड़ना है, फिर उसके साथ बॉन्डिंग करना है, इट विल टेक टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए स्टेप विल बी स्लो। क्या होगा, यहाँ से पाई बॉन्ड के कार्बन ले जाएगा और कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड शेयरिंग कर लेगा नाइट्रोनियम, ठीक। इससे इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी HNO2, और यहाँ पे कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड टूट गया, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिया नाइट्रोनियम आयन में, इसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब इसके थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में नाइट्रोनियम आयन, ये जो इंटरमीडिएट रिएक्टिव स्पीशीज बनी, दिस विल रिएक्ट बैक विद द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा और H+ आयन को लूज करेगा,
इसका मतलब जब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम आया, ये क्या करेगा, CH बॉन्ड से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और H+ आयन रिलीज करेगा, और इस H+ आयन CH बॉन्ड को तोड़ने और H+ आयन को रिलीज करने में कौन हेल्प करेगा, न्यूक्लियोफिल. So either you can write the heading of third step as nucleophilic attack, or you can say depropagation is removal of proton, that is removal of H+ ion. Clear? So third step of migration, step 3 is deprotonation. ठीक है, इसमें भी वही होगा, अनस्टेबल रिएक्टिव स्पीशीज बनी है NO2 पॉजिटिव चार्ज है वाली, this will react with HSO4 negative ion. ठीक है, HSO4 negative ion इसका H+ इलेक्ट्रॉन देगा और H+ को तोड़ के बाहर निकालेगा. क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, H+ आयन निकल जाने के बाद इसमें NO2 जुड़ जाएगा, साथ में H2SO4 वापस आ जाएगा. So role of H2SO4 is catalyst. अगर आपका H2SO4 कंज्यूम हुआ पहले, बाद में रिकवर्ड हो गया, इसका मतलब रोल ऑफ H2SO4 is only to catalyze the reaction, to speed up the reaction. Is it clear? Yes, sir. आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन. नाइट्रेशन के बाद अगली रिएक्शन सल्फोनेशन. When aromatic hydrocarbons are heated with fuming sulfuric acid, when aromatic hydrocarbons are heated with fuming sulfuric acid or oleum, fuming क्या चाहिए आपको, fuming sulfuric acid. Fuming sulfuric acid is also called as oleum. ठीक है बच्चों, when aromatic hydrocarbons are reacted with fuming sulfuric acid, they form sulfonic acid derivatives. Sulfonic acid derivatives. That's all. Remaining things we will study in the next class.